Yes, let's start the Cisco packet tracer. Now we will start the Cisco packet tracer. Cisco packet tracer is a simulator program. Basically, most of you have seen and most of you have the experience uh, in Cisco packet tracer. So maybe some of the students could get the idea, could ask me, so what does it mean, कैसे ये चलता है, तो वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर. Cisco Packet Tracer is a simulator program basically designed to create a virtual environment for doing network practicals, network lab. So for that, I have a Cisco Packet Tracer program. You all can download this program on the website, on the official website. You can download the trial program, or else you can simply Google it, Cisco Packet Tracer student version. That could help you to download a full version. Okay. So in this, let's take a tour of this system. And this we can see that we have the file option. And this we can open a new project, save this file and open an existing file. Okay. And let's come to this side. Here we have the routers. We can see this. It, this is a screen. This is a field where we are going to plot my routers, my switches, my devices, on which I will do every command, every program. So all those things will be done on the screen. So here we have some list of network devices. There is router and there is switch. Okay, switches, hub, as I told you, wireless devices, and the media connections basically. So there are five modules that we have in this section. So every module has like routers, switches, hubs, wireless device, and connection. Connection means the media. Okay. Now we comes to AND device, and everyone knows about the AND device as I already told all of you about the AND device. AND device is the device which which is attached at the end of the network. Basically, the client device and device are the client device, the device which are used by clients. So we will see. Actually, we have done a lot practicals on Cisco Packet Tracer. So we will see that. We will start like as we all know that if we have two networks, we are using a router for that. So we have a number of routers. We simply click on the router. We have number of routers 1841, 1941, 2620, 2621, 2811. 2811 is a router. 2811, 2811 is a router that is widely used, and we will also use 2811. We will use 2911. We can 2621, 2620. These are the series of router, and every router has its own different functionalities. Obviously, that if I have different router, that it must have something different from the other. So we have a router, and we will have a switch. We will take a switch. Okay, so this is the scenario. We have three devices, or else we can use four devices. The N devices comes to the N devices. We have four devices. Now I will first. This is comment box. I'll first write the network documentation actually that I have two networks. Okay. The first network is 192.168.1.0/24. The second network is 192.168.2.0/24. So we have two different networks. So let's try to make a communication between both networks because it is not possible actually. Directly it is not possible to make a communication between these two networks because these two networks have different network bits, or obviously two networks which have different network bits cannot communicate with each other directly. That's why we are using a router.
So yes, now we will do the connections. Okay, let me. Okay, okay, this is what we have. I will increase the size, screen size. Okay, that's gonna be okay. I'll increase the screen size. That will be fine for us. Now everyone can see this, that the packet tracer is running and the two networks we are talking about. Let's do the connections. We will go on the connection tab. We will use the straight through cable because straight through cable is used to connect the different devices. So yes, obviously different devices are going to use. So we are making the connection between a switch and a device, a PC. So PC and a switch both have a different category. Like we can say that PC is a end device and switch is a layer 2 device or networking device. So yes, there we are. We did the connection between switch and devices. Now we will also do the connection again straight to cable because switch is a layer 2 device and router is a layer 3 device. We will make a connection. Okay, so guys, you have to be on time. I don't know why you all are late or shouldn't. Okay, so in this scenario, we can simply see that PC1 and PC0 both devices will have these both devices 192.168.1.1. This will have 192.168.1.2. Okay, that's fine. This will have 192.168.2.1 and let's say 192.168.2.2. So these are four IP addresses that has given below. With every device, we are going to assign the IP addresses. Desktop IP configuration for the first PC 192.168.1.1. This is the subnet mask. For the next device, desktop IP address 192.168.1.2 subnet mask. Then we come with the next device. The next third PC will get the IP address of 192.168.2.1 and the last is 192.168.2.2. Okay guys. So okay guys. आप लोग थोड़ा जल्दी आइए भाई सभी लोग अभी तक तो कुछ स्टूडेंट्स ने लॉगिन नहीं किया है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हम कंटिन्यू करते हैं हमारा now we are going to check whether we are able to communicate with the next network ping 192.168.1.2 okay so this is the IP address of my next device and my next device is in the same network so we are able to communicate with the next 192.168.1.2 because we both these both IP addresses belongs to same network. That's the true line that three networks can communicate. Now comes with the next one. Ping 192.168.2.1. Okay. So we can clearly see that it is not possible to communicate with the other network because the network bits are different. So that's why we are using a router. Okay. So now we will see the idea. Okay. Remember one thing.
and the point is there is another term, and the term is default gateway. What is default gateway? That is important. Okay. So default gateway is a term basically used to define the exit address of a particular network. Guys, I'm going to repeat the statement. Default gateway is an address or is the address of the router interface from which a network from which a packet from a network can get exit or an exit interface of a network. भाई it's very obvious कि मुझे अगर इस network से बात करनी है, if I want to communicate with this network, I have to, if I want to communicate with this network, it is not possible that I can directly communicate with this one. I have to first get exit from this network, then only I can get into this network. So for this, I have to make a reachability with the router for both networks. भाई दोनों networks की router तक reachability मुझे करवानी है. Why I am doing this? Because without this, without using a router, it is not possible. So we are going to use a router. Okay. Now we comes to the point. The default gateway is the IP address that is assigned to the router interface, and the address is the is the exit interface of a particular network. So guys, remember this thing. अगर मैं इस नेटवर्क के एग्जिट इंटरफेस की बात करूं, तो वो ये अगर मैं कह दूं कि सर ये मेरा जो इंटरफेस, ये वाला जो इंटरफेस है जो राउटर पे लगा है, ये मेरा एग्जिट इंटरफेस होगा एक नेटवर्क के लिए, इसके लिए हो सकता है, बट दिस पर्टिकुलर इंटरफेस कैन नॉट बी एन एग्जिट इंटरफेस फॉर सम अनदर नेटवर्क. ये चीज हमें ध्यान रखनी है. एवरी नेटवर्क हैव इट्स ओन एग्जिट इंटरफेस. द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी नेटवर्क हैव इट्स ओन एग्जिट इंटरफेस. सो यस, अगर हमें एग्जिट इंटरफेस चाहिए, दो नेटवर्क हैं, पांच हैं, 10 हैं, सभी के लिए मेरे पास एग्जिट इंटरफेस अलग होगा, सभी नेटवर्क्स का डिफॉल्ट गेटवे अलग होगा. और एक नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस हैं, सभी डिवाइस का डिफॉल्ट गेटवे सेम होगा. क्योंकि अगर एक नेटवर्क की बात करूँ, नेटवर्क इज क्वाइट इक्वल टू अ कॉलोनी और क्वाइट इक्वल टू अ पर्टिकुलर, यस, कॉलोनी वी कैन से, एंड देयर मस्ट बी एन एग्जिट इंटरफेस. वहां पर एक एग्जिट गेट होता है. जितने भी वहां पर रूम्स हैं, जितने भी वहां पर फ्लैट्स हैं, जितने भी वहां पर घर हैं, हाउस हैं, उन सभी को अगर बाहर निकलना है तो देयर मस्ट बी अ सिंगल गेट. सभी का अलग अलग नहीं होता. कॉलोनी से बाहर निकलना है तो आपको वहां जाना ही होगा उस पर्टिकुलर एग्जिट इंटरफेस, और सबका सेम होता है. कुछ वैसा समझिए. अब हम बात करें कि ये हमारे पास है एक राउटर इंटरफेस, हमने यहाँ ले लिया है. अभी एक और कनेक्शन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक नहीं दो नेटवर्क हैं. It's to this one. Okay. So I have two networks. So yes, no problem. We will manage this. तो सबसे पहली बात तो ये कि सर डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है. डिफॉल्ट गेटवे एक आईपी एड्रेस है जो कि राउटर के इंटरफेस पर हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि उस राउटर को हमें हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनाना है, तभी मैं उस राउटर से कम्युनिकेट कर पाऊंगा और तभी मेरे पैकेट्स उस राउटर तक निकल करके जा पाएंगे और उस राउटर से एग्जिट हो पाएंगे. सो फॉर दैट आई विल गो ऑन राउटर. राउटर पे हम लोग CLI मोड पर काम करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे आप लोग इजीली देख सकते हैं. यहाँ पर हमें अभी नो रखना है. वी कैन सी दी राउटर. ओके गाइस, नाउ रिमेंबर दिस थिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है. देर आर थ्री टाइप ऑफ मोड्स. ये कुछ ओके. देर आर थ्री टाइप ऑफ मोड्स आई कैन से इन अ राउटर. ओके. पहला है यूजर एक्सेस, दूसरा है
प्रिविलेज मोड। तीसरा है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मोड। तो तीन मोड हैं जिन पे हम लोग जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट नाउ। माय राउटर जहाँ पर अभी हम हैं, आप लोग इसे क्लियरली देख सकते हैं। हम राउटर के कौन से मोड पर है? यूजर एक्सेस मोड पर है। हम राउटर के कौन से मोड पर है? यूजर एक्सेस मोड पर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तीन टाइप के मोड है यहाँ पर। कौन कौन से मोड हैं? हम लोग, मैं वापस से आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। सेकंड हमारे पास है प्रिविलेज। थर्ड हमारे पास है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मोड। अब बात करते हैं जो यूजर एक्सेस मोड हमारे पास है। जो हमारे पास ये जो यूजर एक्सेस मोड है, इस मोड में मुझे जो भी काम करना है, मतलब इस मोड में जो मेरा डिफॉल्ट मोड है, इस मोड में व्हाट वी कैन डू इन अ यूजर एक्सेस मोड, वी कैन रन द लॉगिन, वी कैन डू login process and some run some show commands. What we can do in user access mode, we can do the login process and and some show commands. We can run some show command. Show command basically used to verify the configuration and to verify the process that is running right now in my router. Okay, privilege mode क्या कर सकता है मेरे लिए? Privilege mode. We verify, okay, monitor and debug the problems and the router. There are three important functions that we do, three important works that we do in privilege mode. We verify, monitor and debug. That means troubleshoot the problems in a router. Okay. फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं कि मुझे मेरे राउटर को ना मेरे नेटवर्क में ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने वहाँ इंटरफेस लिए हैं, दो कनेक्शंस बनाए हैं, एक कनेक्शन एक नेटवर्क के लिए, दूसरा कनेक्शन दूसरे नेटवर्क के लिए। In that case, what I am going to do, I am going to assign them an IP address, obviously. So मैंने अगर कुछ काम किया है, मैंने मेरे राउटर में कुछ चेंजेस किए हैं, if I want to verify these changes, I will work on privilege mode. There are some commands. That commands are used to work in privilege mode. We will discuss those commands next in a few moments. After this, we have the next important mode in which we work. We do the configuration. Okay. So in the next, we do the configuration. Sorry guys, for the interruption. So we do the configurations in global config mode. We do all the changes. Like if I want to configure a interface, मुझे किस इंटरफेस को बंद करना है, मुझे ऑन करना है, उसमें आईपी एड्रेस चेंज करना है, आईपी एड्रेस देना है, मुझे राउटिंग करवानी है, स्टैटिक राउटिंग हम लोगों ने कल बात की थी वो करवानी है, मुझे डिफॉल्ट राउटिंग करवानी है, फिर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल लगाना है, सारे के सारे काम मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में करने वाला हूँ। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम करेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में। प्रिविलेज मोड के अंदर हम लोग देखेंगे, वेरीफाई करने वाले हैं, हमने जो भी काम किया है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की हैं, जो भी प्रोसेस चल रही है उन्हें मॉनिटर करेंगे हम लोग कि क्या सही में मेरे सारे रूट्स मैंने जो राउटिंग प्रोटोकॉल चलाए थे, उसके बाद हम ये वेरीफाई करेंगे कि कौन से रूट आ गए हैं, इंटरफेस डाउन हुआ है, अप हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ देखेंगे, कोई पैकेट
नहीं मिल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को डीबग करने का काम भी हम प्रिविलेज मोड में ही करने वाले हैं। तो ओके गाइस, ये अभी आप लोगों ने देखा, इसको हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारे राउटर्स की तरफ। राइट नाउ वी आर ऑन privilege mode, so we are on user access mode, so we are going to next to the user access mode. next mode हमारा कौन सा होता है? privilege mode होता है। तो there is a command, मेरा मेरा टारगेट है, मुझे इंटरफेस को आईपी प्रोवाइड करवाना है। देखिए आप लोग इसे देख सकते हैं डायग्राम को, मेरे पास डायग्राम जो है उसमें क्लियरली दिख रहा है मुझे कि मेरे राउटर पे दो इंटरफेस हैं, ये दोनों इंटरफेस FA0/0 हैं और FA0/1 मेरे पास दो इंटरफेस है, मुझे दोनों इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे उन इंटरफेस पे काम करने के लिए गाइस यू ऑल कैन सी दैट ऑल दीज इंटरफेस आर इन ग्रीन सिग्नल, बट यहाँ पर ये दोनों ग्रीन सिग्नल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मेरे राउटर पे अवेलेबल जितने भी इंटरफेस होते हैं, ऑल द इंटरफेस अवेलेबल ऑन राउटर आर बाई डिफॉल्ट in the off state, or we can say in administratively down state, so we have to make them manually up, हमें उसे मैन्युअली अप करना पड़ेगा। और फिर दूसरा काम, हमें हमारे पर्टिकुलर राउटर पे हम काम कर रहे हैं तो हमें हमारे राउटर को आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करवाने इंटरफेस को, तो वो काम भी हमें करना है। तो मेरे पास दो काम है, पहला मैं मेरे इंटरफेस को अप करूंगा, अप करने के बाद मेरे इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस मुझे प्रोवाइड करवाना है वो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आफ्टर दिस आई विल वेरीफाई दी कॉन्फ़िगरेशन, मैं वेरीफाई करूंगा मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये काम करने के बाद क्या अब ये दोनों नेटवर्क काम कर पा रहे हैं, और फिर हम वन बाय वन प्रोसेस को समझेंगे कि ये सब हो कैसे रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हम समझने वाली बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें कैसे होंगी? ये सारी चीज़ें होंगी जैसा हम लोगों ने कल और परसों के सेशन में नोट किया। कल और परसों के सेशन में हम लोगों ने जैसे समझा, ये ठीक वैसे ही चलेगा। सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सो इनेबल पे आने के बाद हमें दिख रहा है हैश टैग। So this hash sign will give us the idea that we are on privilege mode. हम privilege mode पर हैं। अभी हम लोगों ने जब enable कमांड चलाई तो हम लोग privilege मोड पर आ गए। तो एक सीक्वेंस है भाई, हम लोगों को अगर 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 कॉन्फ़िग मोड पे जाना है तो हम लोग डायरेक्टली कॉन्फ़िग मोड पे नहीं जा सकते, हमें पहले प्रिविलेज मोड पे आना पड़ेगा और फिर हम लोग कॉन्फ़िग मोड पर जाएंगे। तो देयर इज अ सीक्वेंस, तो हम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। पहले हम प्रिविलेज मोड पर आ गए हैं, फिर हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये कमांड लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कमांड के पास आ गए हैं, कॉन्फ़िग मोड के अंदर हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं सारे काम कर सकता हूँ। तो मुझे पता है मेरा एक इंटरफेस है, और वो इंटरफेस कौन सा है? फास्ट ईथरनेट है, और उसका नंबर है 0/0, जो कि अभी आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है? तो देखो आप लोग गाइस यहाँ पर देख सकते हैं दो इंटरफेस है मेरे पास, FA फास्ट ईथरनेट मैंने आपको बताया था 0/0 और 0/1। आप देखेंगे ये 0/0 है और ये 0/1 है। तो हम लोग इस वाले इंटरफेस को किसमें, इस वाले इंटरफेस को कहाँ रखने वाले हैं? इस वाले इंटरफेस को 192.168.2.0 वाले नेटवर्क में रखेंगे और इस इंटरफेस को 1.0 वाले नेटवर्क में रखेंगे। ठीक है, तो ओके हम लोग यहाँ चलते हैं कॉन्फ़िग इफ, हम लोग इंटरफेस पर आए। सबसे पहले तो इसे नो शट डाउन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ये कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे नेटवर्क को, हमारे इंटरफेस को अप करने के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको दो लाइन देखने को मिल रही है, लिंक 5 चेंज, लिंक प्रोटोकॉल 5 अप डाउन। दो वार्निंग, दो आपको नोटिफिकेशन आए यहाँ पर एग्जैक्टली। तो नोटिफिकेशन में दो चीज़ें दिख रही हैं सर, इंटरफेस अप हो गया है एंड लाइन प्रोटोकॉल ऑफ ऑन इंटरफेस अप हो गया है। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। देखो इंटरफेस अप हुआ है वो हो गया नो शटडाउन कमांड की वजह से। लाइन प्रोटोकॉल अप हुआ है वो क्यों हुआ है लाइन प्रोटोकॉल अप? देखो वो उसका रीजन है कि फॉर एग्जांपल मैंने दो कंप्यूटर को ऑन किया, दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन कर दिया। अभी मैंने ईथरनेट केबल लगा दी है और मैंने अगर दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मेरा जो फिजिकल मीडिया मैंने अप्लाई किया लगाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर लाइन प्रोटोकॉल भी प्रॉपरली वर्क करेगा। अभी तक
सिर्फ स्विच की साइड से मेरे सारे इंटरफेस ऑन थे, राउटर की साइड से नहीं थे। तो जैसे ही राउटर की साइड से मैंने इंटरफेस ऑन किया, मेरा मेरा स्विच और राउटर के बीच का कनेक्शन अप आ गया। अब आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमने जिस इंटरफेस को अप किया था वो दोनों एंड पे अप है। यहाँ पर ये ऑफ दिखा रहा है, ये जीरो जो आपको, ये जो डॉट आपको दिख रहा है, ये ऑफ दिखा रहा है। लेकिन ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये राउटर एंड से बंद है। जैसे ही राउट एंड से ऑन होगा, यहाँ लाइन प्रोटोकॉल अप होगा। लाइन प्रोटोकॉल अप होते ही ये सिग्नल भी ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो दो इन्फॉर्मेशन है, एक इंटरफेस के होने की और एक लाइन प्रोटोकॉल के अप होने की। तो लाइन प्रोटोकॉल के अप होने का मतलब हुआ कि हमारा जो इंटरफेस का जो लिंक है वो लिंक ऑन हो गया है। वो जो हमारी लाइन है, वो जो हमारा कनेक्शन है, वो दोनों एंड से प्रॉपरली वर्क कर रहा है। दैट इज द एक्चुअल मीन ऑफ द लाइन प्रोटोकॉल अप। ओके, अभी हम हमारे राउटर पे आ गए हैं। राउटर के उस पर्टिकुलर इंटरफेस को हम लोगों ने ऑन कर दिया है। तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे अगर मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना है तो वो कमांड है आईपी स्पेस एड्रेस। जो एड्रेस मुझे यहाँ देना है, लेट्स से 192.168.1 डॉट मैंने 10 दे दिया। अच्छा, ये सर ये आईपी एड्रेस मैं कोई सा भी उठा लूँ? हाँ, मेरा जो नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है? मेरा जो नेटवर्क है ये वाला जो नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क, क्योंकि ये दोनों कंप्यूटर फर्स्ट नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो मेरा जो फर्स्ट नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जो आईपी एड्रेसेस यूज आ चुके हैं, पहले एक बार इस्तेमाल हो चुके हैं, जो डिवाइसेस को मैंने प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उनको छोड़ दीजिए सर, क्योंकि वो तो यूज हो चुके हैं ना, दोज आर इन यूज। इनको छोड़ करके जो बाकी के आईपी एड्रेस हैं इस नेटवर्क में जो कि यूज नहीं हुआ है, उनमें से कोई भी एक आईपी एड्रेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमें हमारे राउटर को और इन जितने भी डिवाइसेस मेरे पास लगी हैं 192.168.1.0 वाले नेटवर्क में, इन सबको एक नेटवर्क में रखना है। तो उसके लिए मैंने उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाया 1.10। सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। so yes, this is the command ip address, the address and the subnet mask and enter। ये कमांड है, किसी भी इंटरफेस पर जाइए, उसे अप कीजिए अगर राउटर की बात कर रहा हूं तो, क्योंकि राउटर पे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट डाउन स्टेट में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं। और अगर मैं कहूं कि हमें उन्हें अप करना है तो नो शट डाउन कमांड का इस्तेमाल करके उन्हें हम अप करेंगे। शट डाउन कमांड का इस्तेमाल करके उन्हें हम डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो नो शट डाउन अप के लिए, शट डाउन बंद करने के लिए। ठीक है। तो गाइस, देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं, हमने एक इंटरफेस को ऑन किया बाय यूजिंग द पर्टिकुलर कमांड नो शट डाउन कमांड। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंटरफेस को ऑन करने के साथ साथ उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करवा दिया है। नाउ वी विल गो ऑन प्रिविलेज मोड बाय पुटिंग एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड से मैं किसी भी मोड पर हूँ, देखो अब तक मैं कॉन्फ़िग पे था, लेकिन जैसे मैं पर्टिकुलर इंटरफेस कमांड लिखी ना, तो कॉन्फ़िग के साथ में हाइफन लग के इफ आ गया। तो ये इंटरफेस से है, मैं देख के पहचान सकता हूँ सर, मैं कॉन्फ़िग इफ लिखा हुआ है। कॉन्फ़िग इफ मतलब, कॉन्फ़िग इफ का मतलब है सर मैं इंटरफेस पर हूँ। लेकिन जैसे मैंने एग्जिट कमांड लगाया ना, तो मैं कहाँ हूँ? वापस से कॉन्फ़िग पर हूँ। तो अगर मैं किसी भी मोड पर हूँ, मुझे बाहर आना है तो एग्जिट कमांड। अभी देखिए मैं कहाँ हूँ? प्रिविलेज मोड पर हूँ। और प्रिविलेज मोड पर टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ interface we use the command. To verify the status of interface we use the command. The command is show ip interface. Guys, we all can see how many interface we have: fast ethernet 0/0, fast ethernet 0/1 and VLAN 1। fast ethernet 0/0 पे IP एड्रेस यस हमने दिया है, ओके है। इंटरफेस हमारा यस बिल्कुल ओके है। मेथड क्या था आईपी देने का? सर मैनुअली था, मैं खुद गया इंटरफेस पर, मैंने जाके आईपी एड्रेस दिया, बिल्कुल सही है। स्टेट क्या है, स्टेटस क्या है इंटरफेस का? सर अप है। प्रोटोकॉल, लाइन प्रोटोकॉल अप है क्या? क्या दोनों तरफ से इंटरफेस मेरा ऑन है? जिस डिवाइस पे मैं हूँ उसके अलावा जो दूसरी डिवाइस है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, वहाँ भी इंटरफेस ऑन है? मैंने कहा जी है। तो मेरा इंटरफेस ऑन का प्रोटोकॉल आपका साइन आ गया है। फास्ट एथरनेट 0/1 पे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो यहाँ पर अनअसाइंड कोई आईपी एड्रेस नहीं है। हाँ, इंटरफेस ऑन, इंटरफेस ओके, इंटरफेस में कोई हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड आईपी एड्रेस असाइन करने का, अभी तक आईपी एड्रेस ही नहीं है, तो मेथड भी पता नहीं है।
स्टेटस क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का मतलब होता है बंद, इसे हम खुद जा करके नो शट डाउन कमांड लगा करके ऑन करेंगे। दैट्स द आइडिया। तो अब हम आगे का काम करने वाले हैं, हम वापस से हमारे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे। यहाँ जाकर के मैंने जिस एक इंटरफेस पे काम कर लिया था, उसके बाद बचा था अगला इंटरफेस 0/1, एंड आफ्टर दिस वी विल डू द फर्स्ट कमांड नो शट डाउन। गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप पहले नो शट डाउन करें फिर आईपी दें, या पहले आईपी दें फिर नो शट डाउन करें, बट हाँ हम अपना थोड़ा सा देखने के लिए कि हाँ मेरा काम सही सही चल रहा है क्या। देखो मैंने ऐसे किया, अभी थोड़ी देर में दोनों तरफ से ही ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करें, इस पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएंगे 192.168.2. Let's say 22. Okay, 255 255 255 और 0। ये 22 क्यों दिया मैंने कहा थी सर 192.168.2.1 से लेकर के 192.168.2.254 तक कोई भी आईपी दे सकते हैं आप, लेकिन वो आईपी पहले यूज ना हुआ हो। अगर वो आईपी किसी डिवाइस को नहीं दिया तो आप वो आईपी दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो इस राउटर को भी एज अ डिवाइस ही मानना है। और इस डिवाइस को अगर मुझे इस पीसी से बात करवानी है, तो ये डिवाइस और ये पीसी दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अभी जो डिफ़ॉल्ट गेटवे वाली बात कही थी ना, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, 192.168.1.0 वाले इस इंटरफेस को मैंने इस नेटवर्क में रखा है FA0/0 पे। यहाँ मैंने कौन सा आईपी एड्रेस दिया था सर, मैंने दिया था 192.168.1.10। तो वही इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ भी डालनी पड़ेगी डिफ़ॉल्ट गेटवे में, यहाँ .1.10। दैट्स इट। इसमें भी मुझे वो इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों सेम नेटवर्क की डिवाइस हैं, तो सेम नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे भी सेम ही होने वाला है। नेटवर्क अलग हुआ, इस नेटवर्क के लिए मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे वाला जो आईपी एड्रेस है, मैंने राउटर के इंटरफेस को क्या प्रोवाइड किया था अभी अभी, 168.2.22। yes, so that is going to be the default gateway for this particular network। तो इसमें जो भी आईपी एड्रेस, जो भी डिवाइसेस मेरे पास लगी, अभी दो लगी हुई हैं तो मैं दो में फीड कर रहा हूँ। अगर दो से ज़्यादा होती तो उन सभी में मुझे ये चीज़ डालनी पड़ती। अब हम जो काम हम करना चाह रहे थे, जो हमारा टारगेट था जिससे कि मेरे को बात करनी थी, वो टारगेट पूरा होता है कि नहीं होता है, वो हम एक बार देखते हैं कि क्या मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं पीसी जीरो यानी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठ करके और मैंने इससे बात की है, या इसमें से किसी एक, दोनों में से किसी एक से बात की है। हमने 2.1 से बात की और 2.1 हमें रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो मुझे जवाब दे रहा है दैट, बिकॉज वो नेटवर्क में नहीं है, मेरा नेटवर्क और उसका नेटवर्क अलग अलग है, स्टिल अगर वो मुझे जवाब दे रहा है तो मतलब हम दोनों बात कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द राउटर। अच्छा सर, ये सब कैसे हुआ? तो आप लोगों ने कल, हम लोगों ने प्रोसेस देखी थी कि कैसे एक राउटर एग्जामिन करता है अपनी राउटिंग टेबल में, कैसे पैकेट उसके पास आता है, वो उसको समझता है। वही चीज़ हम समझते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि राउटर कैसे देख रहा है, क्योंकि मैंने जब पिंग किया तो वो अपनी राउटिंग टेबल में जाके ज़रूर देखेगा इसके बारे में। तो ज़रा, अब हम हमारे इंटरफेस पर हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से एक बार और बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आके वही कमांड लगाते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मुझे देखने को मिला सर अभी मेरे दोनों इंटरफेस अप हैं, एक पे 1.10 और एक पे 2.22 लगा हुआ है, दोनों सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। ठीक है सर, मेरा ये वाला काम हो गया। लेट्स सी दी राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल देखने की कमांड शो आईपी रूट की, जो हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। अब इस टेबल को खुद एग्जामिन कीजिए और समझिए कि इस टेबल में वो काम कैसे कर पा रहा है, कैसे पैकेट्स एक दूसरे को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, वो आप देखिए। फटाफट से मुझे बताइए, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट ये चैट बॉक्स में डालिए अपने को क्या डाउट है, किसी को क्या चला क्या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, फटाफट से बताइए। फिर आज हम इसको देखने के बाद स्टैटिक रूट हम लोग करेंगे, स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे आज। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।
उसके बाद हम लोग स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप लोग इसे देखिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कहीं कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर नहीं है तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए यहाँ पर। ताकि हम कंटिन्यू कर सकें फटाफट से। ओके, सो ठीक है, हम आगे चलते हैं। अभी के लिए क्लियर है तो आगे के लिए भी क्लियर होगा ऑब्वियसली। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग क्या होती है और स्टैटिक राउटिंग हम कैसे करेंगे। कल हम लोगों ने डायग्राम्स देखे, सब कुछ देखे। आप लोग एक बार के लिए ज़रा थोड़ा सा दोबारा से अगर मैं कहूँ तो आप लोग एक बार डायग्राम को छोड़ करके जो हमने राउटिंग टेबल है उसको देखिए। यहाँ पर हमें कोड्स दिखाए जा रहे हैं, सी फॉर कनेक्टेड, एस फॉर स्टैटिक। तो फिलहाल मुझे कौन सा कोड मिल रहा है? सी मिल रहा है। सी का मतलब हो गया डायरेक्टली कनेक्टेड। तो मैंने पास पैकेट जब मेरे पास आएगा, सोचते हैं, देखिए फ्लो को देखते हैं हम लोग। अब हमारे फ्लो को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो पैकेट निकला यहाँ से, यहाँ पहुँचा, राउटर ने उस पैकेट को, जो लेयर टू का जो पैकेट था उस पैकेट को हटाया, उसको अनरैप किया, तो लेयर थ्री प्रोटोकॉल में डेस्टिनेशन आईपी मिला। ठीक है, उस डेस्टिनेशन आईपी को उसने लुकअप प्रोसेस के जरिए लुकअप किया, किसमें? हमारी राउटिंग टेबल में। तो उसने देखा कि यार ये जो पर्टिकुलर आईपी है ये कहाँ से दिख रहा है मुझे, किसमें है ये आईपी? तो हमें देखने को मिला कि सर ये जो 2.0 वाला पर्टिकुलर नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे 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 इस इंटरफेस से, इस इंटरफेस से। तो ठीक है, इस इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देते हैं। ये यहाँ पर कोई पेरेंट चाइल्ड नेटवर्क नहीं है, ये हमारे पेरेंट चाइल्ड वाले नेटवर्क नहीं है गाइस, आप ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि अभी तक हमने सबनेटेड नेटवर्क के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप वन जो हमारा है, जो नेटवर्क्स थे हमारे, वो नेटवर्क ये हमारे पास है, इसमें इंफॉर्मेशन है फास्ट इथरनेट लेवल वन, लेवल टू। लेवल वन वाला जो हमारा जो नेटवर्क है वो ये है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये कैसा नेटवर्क है, रेगुलर नेटवर्क या नॉर्मल नेटवर्क या रियल नेटवर्क, इसमें कोई सबनेटिंग करी हुई नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ मिल रही है। तो इस तरीके से वो पैकेट को क्या, डेस्टिनेशन को लुकअप किया उसने आईपी निकाल करके, पता चला कि वो तो इस फास्ट इथरनेट 0/1 पे भेजना है उसको। तो ठीक है, उसने उसको वापस से क्या किया, री एनकेप्सुलेट किया फ्रेम में, री एनकेप्सुलेट करके उसको फॉरवर्ड कर दिया उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी पर। ठीक है, ये हमारा काम होगा, ये हमारे राउटर का काम होता है, कैसे वो इस काम को करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग के बारे में हम लोग समझते हैं, यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग क्या है और कैसे हम उस पे काम करने वाले हैं। तो फॉर दैट वी हैव द स्लाइड एक्चुअली। तो आप लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड के बारे में, स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को, तो ठीक है हम आगे चलते हैं। स्टैटिक रूट विद एग्जिट इंटरफेस। पर्पस ऑफ अ स्टैटिक रूट, अच्छा क्या पर्पस होगा स्टैटिक रूट का भाई? मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड रूट है। जब हम लोग फ्रॉम अ नेटवर्क टू अ स्टब नेटवर्क, ओके, एक स्टब नेटवर्क क्या होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी है जिसे हम लोग कई बार इस्तेमाल में लेंगे। और जब हम लोग थोड़ा डीप डाइव करने वाले होंगे इसमें, सीसीएनए में जब डीप डाइव करेंगे, सीआईजीआरपी ओवरस्पियस में,
तब भी हम लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने वाले हैं। तो स्टब नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ एट द एंड व्हिच हैज़ द लिमिटेशंस। अभी ये कुछ ऐसा समझिए कि मुझे आई डू नॉट वांट ऑल दी नेटवर्क्स इन माय राउटिंग टेबल। मुझे सारा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा। देयर आर सम नेटवर्क्स which are called stub networks because those networks are at the edge of the topology। at the edge मतलब किनारे पे होते हैं। तो किनारे पे जो टोपोलॉजीज हमारे पास जो नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं वो हमारे स्टब नेटवर्क्स होते हैं क्योंकि स्टब राउटर से वो कनेक्टेड होते हैं। और स्टब राउटर हमेशा एज राउटर्स माने जाते हैं क्योंकि उससे आगे वो कोई इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं करने वाला है। आप R1 को देख करके इस बात को समझ सकते हैं कि R1 के पास जो नेटवर्क की तरफ से जो रूट्स आएंगे, नेटवर्क की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को R1 किसी और राउटर के पास फॉरवर्ड नहीं करने वाला क्योंकि वहां है ही नहीं। मेरे ऑफिस में या मेरे घर में मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया तो जो R1 है, जो मेरे घर में मैंने कनेक्शन लिया है, उस पर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। वो उससे आगे वो किसी को देगा ही नहीं ना, तो वो इंफॉर्मेशन इसीलिए वहां पर हम लोग स्टैटिक रूट कर लिया करते हैं। सब नेटवर्क में हम लोग स्टैटिक रूट करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, कमांड्स क्या हैं सर हमारे पास। टू कॉन्फ़िगर अ स्टैटिक रूट यूज द फॉलोइंग कमांड। कमांड आईपी रूट कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आप लोग इस कमांड को देख लीजिए। आईपी द कमांड को लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें कमांड का फ्लो पता होना चाहिए भी काम कैसे करेगा, उसमें कुछ लिखा है वो क्या है। देखिए राउटर के अंदर राउटर कॉन्फ़िग, अच्छा देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। सारा का सारा जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो कॉन्फ़िग यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होने वाला है। मैंने राउटिंग करनी है, मैंने स्टैटिक कर लूँ, चाहे मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर लूँ, चाहे मैं डायनामिक राउटिंग कर लूँ, मैं कुछ भी काम करूँगा, मैंने इंटरफ़ेस को अप करना है, डाउन करना है, कुछ भी काम, बहुत सारे काम करने होंगे। सारे कॉन्फ़िगरेशन वाले सारे पार्ट्स हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आईपी रूट ये कमांड है। इसके बाद ये जो नेटवर्क एड्रेस है, ये हम पर्टिकुलर जिस नेटवर्क तक पहुंचना चाहते हैं, यानी जो हमारा रिमोट नेटवर्क है जिसके इंफॉर्मेशन मेरे राउटर तक नहीं है, वो नेटवर्क यहाँ हम लोग डालने वाले हैं। उसके बाद आता है सबनेट मास्क। किसका? उस पर्टिकुलर नेटवर्क का जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे राउटर को नहीं है, जो मैं ऐड करवाना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर नेटवर्क का सबनेट मास्क। एंड देन एग्जिट इंटरफेस, और एग्जिट इंटरफेस यानी कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस। मेरे को मेरे वहां तक इस पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मैं किधर से बाहर निकलूं, ये इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करवानी है। इसी के बारे में जो पैरामीटर्स के बारे में देखो, ये कमांड आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये जो कमांड आप लोगों के पास है, इस कमांड के बाद में पैरामीटर्स क्या दिखा रहे हैं। ये नेटवर्क एड्रेस क्या है सर? डेस्टिनेशन जहां तक मुझे पहुंचना है उसका नेटवर्क एड्रेस लिखिएगा गाइस। नेटवर्क एड्रेस दैट मीन्स द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। किसी पर्टिकुलर पीसी का आईपी नहीं लिखना है, नेटवर्क एड्रेस लिखना है, यानी कि पहला आईपी लिखना है। बट 192.168.2.2 या 2.1 नहीं लिख देना है, 2.0 लेना है, हमें पूरा नेटवर्क चाहिए क्योंकि मैं एक एक पीसी के लिए अलग अलग से राउटिंग नहीं करवाने लगूंगा। समझ रहे हो ना? उसके बाद फिर सबनेट मास्क उस पर्टिकुलर नेटवर्क का जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है उसका। अब बात करते हैं सर, उसके आगे लिखा है आईपी एड्रेस या फिर एग्जिट इंटरफेस, इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या सर? नेक्स्ट हॉप का, जिधर से मैं बाहर निकलूंगा मेरे राउटर का वो मेरे राउटर का नेट, वो मेरे राउटर से पड़ोसी वाला जो राउटर है उसका आईपी एड्रेस जिसको मैं जानता हूँ। अभी समझेंगे हम कैसे, कौन से की बात कर रहे हो सर, आप क्या कह रहे हो, अभी हम समझेंगे। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप इसे इस एग्जाम्पल को जरा देखिए। ये मेरा राउटर है, आप लोग इसे बेसिकली बहुत सिंपल से समझ लीजिए क्या हो रहा है। ये मेरा राउटर है सर। अब इस राउटर में मैं यहाँ बैठा हूँ, आर वन के लिए ना, यहाँ पर कोई रूट है, कोई भी रूट जिसके बारे में ये नहीं जानता आर वन, तो मुझे ऐड करवाना है, तो मैं कमांड दूंगा सर वन आईपी रूट ये फलाना नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क और एग्जिट इंटरफेस। अभी एग्जिट इंटरफेस क्या है सर मेरे लिए? ये सर मेरे पड़ोसी राउटर का वो इंटरफेस जहाँ से मैं इधर से बाहर भाग जाऊंगा। ये मेरा खुद का लोकल है, इसका तो पता है इसको, बाहर वाले का ये। या फिर आईपी एड्रेस तो वो इसी का आईपी एड्रेस है, पड़ोसी का, अपने पड़ोसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस मुझे चाहिए। तो ये चीज़ हम समझनी है कि एग्जिट इंटरफेस या फिर जो आईपी एड्रेस दिया जा रहा है वो कहाँ का है सर? वो यहाँ का है।
इस पर्टिकुलर पॉइंट का, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने लिखा सब कमांड, हमने देखा क्या क्या लिखा हुआ है कमांड्स में। अब देखिए स्टैटिक रूट्स के सिंटेक्स को हम लोग समझते हैं, कैसे ये लिखा हुआ है, कैसे समझना है हम लोग इसे। देखो ये डायग्राम हमारे पास R1 स्टैटिक रूट टू R2 लेंथ। देखो भैया जी R1 हमारे पास है, ये R3 है, R2 है। R1 पे बैठा हूँ, R2 के लेन, R2 पे लेन, लेन मतलब क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। तो R2 राउटर पे लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा है भाई, कौन सा नेटवर्क है, 172.16.1.0/24। इस पर्टिकुलर नेटवर्क तक मुझे पहुंचना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कमांड पहले ही बता देता हूँ, आप लोग कमांड को समझिएगा। देखो कमांड मैंने जो सिंटेक्स है उसी के हिसाब से लिखने वाला हूँ। कमांड हमारी क्या होगी, देखो मैं बताता हूँ। ओके, हम लिखते हैं कमांड को, यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे, देखिएगा आप लोग, IP रूट। ठीक है, फिर हमें बताइए R1 पे हैं हम लोग, अभी R1 पे हैं। मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, 172.16.1.0। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, बिकॉज /24 नेटवर्क है तो 255.255.255.0। दैट्स, अभी यहाँ तक ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लिखूं, मैं R1 पर हूँ, हम ऑन R1 यहाँ हूँ, या तो मैं लिखूं इसका इसका इंटरफेस नेम, इसका इंटरफेस नेम क्या है, सीरियल 0/0/0। या फिर इस R2 पे जो इस इंटरफेस पे जो IP एड्रेस है कौन सा सर, 172.16.2.2। देखो 2.1 तो ये रहा, 2.2 ये है। तो मैं या तो यहाँ पे लिखूंगा SERIAL सीरियल 0/0/0। ठीक है, या फिर मैं लिखने वाला हूँ 172.16.2.2। ये देखिए, अब हम बात करें, ये जरा आप इसे गौर से देखिए। ये मैंने कमांड लगाई है IP रूट 172.16.1.0 स्पेस 255.255.255.0। या तो मैं इसका लिखूं सीरियल नंबर, इंटरफेस नंबर, या फिर मैं इसका लिखूं IP एड्रेस। तो या तो मैं लिखूंगा सीरियल 0/0/0, या फिर लिखूंगा 172.16.2.2। अब क्या अपन सही कर रहे हैं उसको देखिए। हम यहाँ आए, R1 पे हम लोग लिखेंगे IP रूट। अच्छा, ये कोई और दो रिमोट नेटवर्क्स हैं, कौन से हैं, एक तो ये वाला है 1.0 वाला है, और एक 2.0 वाला है। इनकी और इन्फॉर्मेशन देखो, इसकी इन्फॉर्मेशन तो ये है। अच्छा, इसके लिए क्या लिखूंगा, IP रूट 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0। अच्छा, इस नेटवर्क पे, इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे मुझे पहुंचना है। इस नेटवर्क पे कहाँ से निकलूँ सर, बाहर में मैं यहीं से निकलूंगा। हो सकता है ये नेटवर्क एक राउटर छोड़ करो, दो राउटर छोड़ करो। तो गाइस मुझे इतना पता है कि मुझसे मेरा पड़ोसी कनेक्टेड है, उससे कौन कनेक्टेड है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई विल नॉट एबल टू सी दी next to next routers. I can only see the next hop because of the same network। क्योंकि हमारे R1 और R2 दोनों के बीच में एक नेटवर्क चल रहा है। सेम नेटवर्क क्यों ले रहे हैं हम लोग इन दोनों के बीच में, क्योंकि सर दो राउटर आपस में बात करेंगे तभी तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कि मेरे पास रूट में ये है, तेरे पास ये है। वो इन्फॉर्मेशन मुझे तब मिलेगी जब ये दोनों सेम नेटवर्क में होंगे। यही वाला डायग्राम हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। ये सारा काम हम करेंगे, यही वाला टोपोलॉजी हम लोग उठाने वाले हैं। ओके, राउटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एवरी राउटर मेक्स इट्स डिसीजन अलोन। ओके, बेसिकली यस, ये हम पढ़ चुके हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट हैज इट्स ओन राउटिंग टेबल, डेफिनेटली द फैक्ट दैट वन राउटर हैज सर्टेन इंफॉर्मेशन इट्स राउटिंग टेबल does not mean that other routers have the same information. Yes, we all know, ये जरूरी नहीं है कि R1 के पास जो राउटिंग टेबल में नेटवर्क्स हैं वो R2 के पास भी होंगे। R2 के पास अपने नेटवर्क्स हैं, R1 के पास अपने हैं, R3 के पास अपने होंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पाथ, routing information about a path from one network to another does not provide routing information about the reverse or return path। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि हमें, हमने जो राउटिंग करवाई है वो सिर्फ हमें
हमारे वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हो कि मतलब सिर्फ जाने की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाएगा, आने की भी नहीं। हमें जाने जाने की इंफॉर्मेशन देगा, आने की इंफॉर्मेशन हमें उस राउटर से मिलेगी जो राउटर हमारे डेस्टिनेशन के साइड है, क्योंकि वहां से वापस आना तो उसी राउटर की तरफ से होगा ना। अब देखिए कैसे होगा, ये सारा काम हम करके देखते हैं। इसी चीज को हम लोग करके देखेंगे। एग्जिट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस होंगे, और फिर हम लोग इसको करके देखते हैं ना। अब हम बात करते हैं, अब फटाफट से एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करने वाले हैं। नो, ओके। तो मेरा जो टोपोलॉजी है वो कुछ ऐसे था। मेरे पास राउटर्स हैं, कौन कौन से राउटर्स हैं, मैं मतलब 3 राउटर्स मुझे यहाँ पे काम में लेने हैं। 2, 3। हम कुछ वैसी ही टोपोलॉजी डिजाइन करेंगे, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ वैसी टोपोलॉजी ताकि आप लोग उसे इजी तौर पे समझ जाएं, और ऐसा कुछ नहीं है। एक एक डिवाइस हम यहाँ ले लेते हैं इनके लिए। एक डिवाइस यहाँ पर हो जाएगा इनके लिए, और ये एक डिवाइस हमने यहाँ पर रख दिया है। तो फिलहाल हम कनेक्शन के तौर पे, अच्छा, मेरे राउटर में, हाँ ठीक है, मुझे कनेक्शन के लिए कुछ एडिशनल कनेक्शन ऐड करने होंगे। इस पे मैं कितने मल्टीपल कनेक्शंस में कर सकता हूँ सर? एक कनेक्शन तो मुझे ये करना होगा, एक मुझे केबल यहाँ लगानी होगी, और एक केबल मुझे यहाँ लगानी होगी। तो मुझे कितने इंटरफेस चाहिए फास्ट एथरनेट के? सर 3। मेरे पास कितने हैं सर? मुझे क्या पता कितने हैं। तो देख लिए, हम लोग देख लेते हैं। FA 0/0 0/1। तो ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए, अच्छा, आप लोगों में से आज कौन कौन अवेलेबल है? आई डोंट नो, कुछ स्टूडेंट्स, why they are not able to take the session regularly, I don't know what's the problem with them. Okay, so Shekhar, I don't know you are working or not. अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी ने भी ये काम किया है। नो प्रॉब्लम, हम समझते हैं। जब भी हम हमारे कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर से कुछ भी चेंज करना होता है ना, कुछ भी, अभी ग्राफिक्स कार्ड लगाना है या मुझे एक लैन कार्ड लगाना है, कुछ प्रॉब्लम आ गई उसे देखना था, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को बंद करते हैं। तो मैं मेरे राउटर को भी ऐसे ही बंद करने वाला हूँ। देखिए मेरे राउटर पे एक स्विच ऑफ का बटन है, इसे ऑफ करूँगा। मुझे क्या ऐड करना है? मुझे ईथरनेट ऐड करना है। 2FE2W, ये एक मॉड्यूल है, दो फास्ट इथरनेट वाला। दो मैंने फास्ट इथरनेट वाला मॉड्यूल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बिकॉज ये पैकेट ट्रेसर है गाइस, इट्स अ सॉफ्टवेयर टूल। it's so easy to work on this software tool. I will arrange some live routers example labs also for you, that will help you to understand the concept of how they work, and what the uh, difference, what the major difference while we are working on packet tracer and while we are working on a real router. So we will do the both labs. Right now we are working on packet tracer. तो यस, मैंने मेरे राउटर को ऑफ करके मॉड्यूल ऐड करके ऑन कर दिया। अभी हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं राउटर के फास्ट एथरनेट 0/0 से। देखिए मेरे पास कितने हैं, अभी अभी हम लोग खुद देख रहे हैं यहाँ पे कितने इंटरफेस ऐड हो गए हैं। 2 ऐड किए थे सर हम लोगों ने। 0/1 से गीगाबिट यहाँ पर ऐड है, 2901 वाला है। तो गीगाबिट का मतलब आप लोग समझते हैं गाइस? गीगाबिट का मतलब कैट 6 केबल आप लोगों को ध्यान होगा, आई थॉट। आर एस, ये आर एस कौन है आज? हु इज आर एस? ओके, तो गीगाबिट इथरनेट हमारे पास है, तो हमने कमांड कनेक्ट किया है कैट 6, यानी कि BBPS का जो बैंडविड्थ हमारे पास मिलने वाला है मुझे वो मिलता है। फिलहाल मैं कनेक्शंस करता हूँ मेरे केबल्स के साथ में। हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो नेसेसरी कमांड्स उनका हम लोग करते हैं फटाफट से। अभी कुछ कनेक्शंस और बाकी हैं। ये कनेक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप वाले कनेक्शंस हैं, केबल्स हमें लेनी है। केबल सेलेक्ट किया हम लोग यहाँ पर, और इसके फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें RS232 नाम का एक और इंटरफेस हम लोगों को दिखाई देता है, जिसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग सीरियल केबल के नाम से भी जानते हैं। जिसका इस्तेमाल हम हमारे राउटर में कंसोल केबल ऐड करने के लिए करेंगे। हम हमारे कंप्यूटर को
जब राउटर से कनेक्ट करते हैं उसे एक्सेस करने के लिए, उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो हम कंसोल केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो उस केबल का एक एंड RJ45 होता है जो राउटर में लगता है, दूसरा एंड सीरियल होता है RS232 जो कि इस स्विच हमारे पी डिवाइस के RS232 वाले इंटरफेस पर लगता है। अभी मेरी टोपोलॉजी मैंने डिज़ाइन कर ली है, यहाँ पर चल रही है। अब हम कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स हम लोगों को करने हैं, वो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 192 dot okay let's see 172.16.3.0/24 ओके एंड यहाँ पर है 172.16.2.0/24 यहाँ पर है 172.16.1.0/24 यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24 and the last network we have in this topology 192.168.2.0/24। सो देख लीजिए, अब हम लोगों ने नेटवर्क्स यहाँ पर असाइन कर दिए हैं। मैं अभी हमारी टोपोलॉजी को थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ ताकि सब चीज़ें ढंग से अरेंज हो जाएं और हम हमारे टोपोलॉजी को थोड़ा सा जूम आउट करके देख सकें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं जब आपको कुछ दिखाई ना दे। इसमें छोटे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो वहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसे हम लोग थोड़ा सा फिगर आउट कर रहे हैं। तो ओके, द सेम सिनेरियो, इसी पे हम लोग काम करने वाले हैं आज। ये हमारा है। अभी हम लोग सबसे पहले पीसी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हमारा नेटवर्क है डेस्कटॉप आईपी 192 डॉट सॉरी द आईपी एड्रेस इज ओके। लेट मी फर्स्ट जूम इन ताकि आप लोग इसे देख सकें। टोपोलॉजी को आप लोगों को दिखाई दे रही होगी अभी सब कुछ। तो अब हम काम करना शुरू करते हैं। कॉन डेस्कटॉप आईपी एड्रेस 172.16.3.1, लेट्स से 3.1 ले लेते हैं यहाँ पर। एंड नेटवर्क हमारा है /24, तो मुझे /24 वाला 255.255.0 वाला नेटवर्क देना पड़ेगा। उसके बाद हम चलेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, मैं ले लेता हूँ सर 172.16.3.2 ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्री आईपी एड्रेस है जो कि मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसका इस्तेमाल राउटर के इंटरफेस पर देने के लिए करूँगा ताकि मेरा काम हो सके। नेक्स्ट हम लोग उठाएंगे सारे डिवाइसेस पे पीसी को सबसे पहले आईपी एड्रेस हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। डेस्कटॉप आईपी, ये जो मेरा आईपी एड्रेस है 172.16.1.1 space 255.255.255.0 and default gateway will be 172.116.1.2। okay, it is not mandatory कि 1.2 लेना है, 1.10 लो, 20 लो, 22 लो, 25 लो, doesn't matter, but within the range of the particular network जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं उस नेटवर्क की रेंज में होना चाहिए। ये जो थर्ड नेटवर्क है हमारे पास 2.0 का है 192.168.2.0, तो 192.168.2.1 and obviously 192.168.2. Let's say 10 is going to be the default gateway for that particular PC। अब हम राउटर्स पे चलते हैं। राउटर्स पे चल करके सबसे पहले टोपोलॉजी को क्लियर करते हैं। हम टोपोलॉजी डिजाइन करते हैं। राउटर इनेबल मोड, फिर हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले चलेंगे मेरे राउटर के FA0/1 इंटरफेस पर। तो हम लोग चलेंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। ओके, फास्ट ईथरनेट 0/1। लेट मी फर्स्ट डू नो शट डाउन। ऐसा करते ही मेरा इंटरफेस अप हो गया है। ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लाइन प्रोटोकॉल
एंड इंटरफेस दोनों अप हो गए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी होगी इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना, ताकि ये एक नेटवर्क में हो जाए दोनों के दोनों। मुझे इस डिवाइस को और इसको दोनों को एक नेटवर्क में रखना है, इसके लिए मैं इससे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो मैंने आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, इससे हम लिखेंगे सर कौन सा आईपी एड्रेस था, 172.16.3.2 स्पेस 255.255.255.0। दैट्स द आईपी एड्रेस, हमने प्रोवाइड करवा दिया इसको। फिर हम चलते हैं सर इसके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो पहले एक इंटरफेस से बाहर निकलो ताकि हम दूसरे पर चल सकें। फास्ट इथरनेट 0/0, ओके। 0/0 हम लोग इसे भी नो शट डाउन करने वाले हैं। देखिए मेरा सिर्फ लाइन प्रोटोकॉल अप नहीं हुआ है, सिर्फ इंटरफेस अप हुआ है। लाइन प्रोटोकॉल अप क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सर मेरा ये जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है सर, ये कनेक्शन और ये कनेक्शन, दोनों कनेक्शन फिलहाल ऑफ है। ठीक है, एक तरफ से ऑन करने पर मेरा लाइन प्रोटोकॉल ऑन नहीं होगा। मैं जब राउटर के इस राउटर पे जाकर के जब इस इंटरफेस को जब मैं ऑन करूंगा तो मेरा इंटरफेस ऑन हो जाएगा, तो मेरा लाइन प्रोटोकॉल भी अप हो जाएगा इंटरफेस ऑन होने के साथ साथ। तो अभी तक लाइन प्रोटोकॉल अप नहीं हुआ है, ठीक है। वो तब होगा जब दोनों तरफ से मेरे इंटरफेस ऑन होंगे, दोनों तरफ से मेरे इंटरफेस प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे, तब लाइन प्रोटोकॉल अप होगा। तो पहले आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा देते हैं इसे, हमने हमारा काम किया है, हमने इंटरफेस को नो शट करके आईपी एड्रेस देना है। तो 172.16.2. लेट्स से 1 देन 255.255.255.0। हमने आईपी एड्रेस दे दिया, सबनेट मास्क दे दिया, एक बार के लिए हमारा काम खत्म। ठीक है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होती है हमें टोपोलॉजी डिज़ाइन करते वक्त, जिस पे हमें ध्यान देना होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाएं। एड्रेसिंग देने के बाद वेरीफाई करें, उसके बाद आप अपना राउटिंग जो आपको करनी है वो कर सकते हैं। तो हमने हमारे एक राउटर के एड्रेसिंग कंफर्म कर दी है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे राउटर पर, जो कि हमारा राउटर नंबर 1, तो राउटर नंबर 2 जो हमारा है, इस राउटर पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर आकर के अपना काम शुरू करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले चलते हैं राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 पे, FA 0/0। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पर चल के सबसे पहला काम देखिए, आप लोग खुद देखेंगे लाइन प्रोटोकॉल अप होगा। नो शट डाउन जैसे ही मैंने किया, तो एक मिनट, 0/0 इसी राउटर पे हैं और इसके FA 0/0। ओके गाइस, वी डिड अ मिस्टेक, और हम लोगों ने इस मिस्टेक को ध्यान भी नहीं दिया। और वो मिस्टेक क्या है तो मुझे बताएगा। द मिस्टेक इज द केबल, द मीडिया दैट हैज बीन यूज्ड, सेम डिवाइसेस है गाइस, सेम डिवाइस, क्रॉसओवर केबल 0/0 टू 0/0, सेम डिवाइस। अभी देखो मैंने जस्ट केबल चेंज की है, लाइन प्रोटोकॉल on interface path and 0/0 changed it to up. The problem was there that if I want to connect same kind of device, I have to use the crossover cable। ये मेरा प्रॉब्लम था, जो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है अभी। ये हमें ध्यान रखना है, हमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना होता है, कौन सा मीडिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं इसी इंटरफेस पे, आगे चलते हैं इसी राउटर पे काम करते हुए। यहाँ देखिए आप लोग, इस इंटरफेस को हमने अप किया है। अब इस पे हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएंगे 172.16.2.2 स्पेस 255.255.255.0। ये इस इंटरफेस पे 2.1 था। इंटरफेस एफ इस पे 2.1 है और इस पे हमने 2.2 रखा हुआ है, तो दोनों दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। इस इंटरफेस से बाहर ही निकलिए। इंटरफेस पास इथरनेट 0/, ओके, लेट्स से 1/0। इस इंटरफेस पे काम करते हैं, इस अप इंटरफेस पे 1/0। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो नो शटडाउन। लिखते ही मेरा इंटरफेस ऑन हो गया, लाइन प्रोटोकॉल भी अप हो गया, क्योंकि स्विच साइड से वो इंटरफेस पहले से ही अप है।
तो दोनों तरफ से सिर्फ इंटरफेस का अप होना था, हमारा काम हो गया। आईपी एड्रेस 172.16.1 अभी यहाँ पर देखिए, हमने 1.0 वाला नेटवर्क है तो यहाँ पर इसको 1.2 दिया था। चेक करें क्या दिया था हमने, डिफॉल्ट गेटवे 1.2 दिया था। तो हमें यही आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे देना है, क्योंकि इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस देंगे वो इस पर्टिकुलर नेटवर्क का एग्जिट आईपी होगा, और एग्जिट आईपी सेम नेटवर्क से होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 1.2 255 255 255.0 एग्जिट आईपी एड्रेस हमने प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट जो इंटरफेस हमारा बचता है वो है FA0/1। तो ये फास्ट ईथरनेट 0/1 नो शट डाउन, नो शट डाउन किया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं सिर्फ इंटरफेस अप हुआ है, उसका लाइन प्रोटोकॉल अप नहीं हुआ है, क्योंकि अदर साइड पे वो इंटरफेस डाउन है। आईपी एड्रेस 1.0 है, तो हम लिखेंगे आईपी एड्रेस 192.168.1 लेट्स से 1 स्पेस 255.255.255.0 IP addresses has been given on this particular राउटर। इस राउटर पे हमने आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करवाते हैं, सारा काम कर दिया है इन दो राउटर्स पे आईपी एड्रेसिंग का। थर्ड राउटर पे हम लोग चलते हैं, और इस थर्ड राउटर पे काम करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए थर्ड राउटर पे सबसे पहली चीज़ हम आते हैं हमारे राउटर पे, इनेबल कमांड अप्लाई करते हैं। इनेबल कमांड अप्लाई करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग चलेंगे इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है यहाँ पर देखिए, गीगाबिट इंटरफेस है, तो GIGABIT ईथरनेट 0/0। यहाँ सबसे पहले जैसे मैं नोड शट डाउन करूँगा ना, तो आप देखेंगे लाइन प्रोटोकॉल भी अप हो जाएगा, और ना केवल इस राउटर पे, राउटर नंबर सेकंड पे भी ये काम होगा ऑटोमेटिकली, आप जा करके देख सकते हैं। देखिए मैं इस राउटर पे आके देखता हूँ तो ये नोटिफिकेशन आया है, आप लोग को देखिए लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस FA0/1। FA0/1 से पहले लाइन प्रोटोकॉल अप नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो गया। जैसे मैंने अदर राउटर पे, दूसरे राउटर पे जैसे ही मैंने काम किया तो वो काम भी इधर हो गया। ठीक है, अब इसको आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस 192.168.1.2 लेट्स से 255.255.255.0। ये हो गया यहाँ पर, यहाँ से बाहर निकलिए। अगला इंटरफेस इस राउटर पर है वो है इंटरफेस GIGABIT गीगाबिट ईथरनेट 0/1। वही नो शट डाउन। देन आईपी एड्रेस क्या होगा यहाँ पर, 2.0 वाला नेटवर्क है, 192.168.2 लेट से यहाँ पर हमने 2.10 दिया था आईपी एड्रेस। आईपी स्टॉप की आप लोगों को ध्यान होगा इस चीज़ का, नहीं होगा तो मैं अभी वेरीफाई कर देता हूँ आप लोगों को। तो हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पर आइए ज़रा आकर के चेक करते हैं। 2.10 दिया था, हाँ बिल्कुल हमने 2.10 ही दिया था। तो गाइज हमने आईपी एड्रेसिंग कंफर्म कर दी है, यहाँ पर एक बार के लिए मेरी तरफ से आईपी एड्रेसिंग हो चुकी है। द सेकंड टास्क टू वेरीफाई दी आईपी एड्रेसेस। गाइज अगर हम कंटिन्यूसली काम करते जाते हैं ना, तो वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम ज़रा ध्यान नहीं दे पाते हैं कि प्रॉब्लम, कई बार हमने एड्रेसिंग में प्रॉब्लम कर दिया, कहीं और प्रॉब्लम कर दी, तो समझ नहीं आता है कि फिगर आउट कहाँ से करना है, प्रॉब्लम को देखना कहाँ से है। तो हमें साथ ही साथ इस चीज़ को लेके चलना है कि अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पर हो रही है, कहीं कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो उसे हम वेरीफाई करते हुए चलें। मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन किया है, राउटिंग स्टिल अभी नहीं हुई है, राउटिंग बाकी है, बट एक कॉन्फ़िगरेशन मेरी हो गई है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करना है अगर मुझे, तो मुझे साथ ही साथ करना पड़ेगा। तो हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे, हम हमारे फर्स्ट राउटर पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम कमांड इस्तेमाल करेंगे, प्रिविलेज मोड में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे शो आईपी
इंटरफेस ब्रीफ। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को गौर से देख सकते हैं। हमने जो आईपी एड्रेस दिए हैं 0/0 पे 2.1 होना चाहिए, 0/1 पे 3.2 होना चाहिए, 0/1 पे 3.2 होना चाहिए। दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 2.1 होना चाहिए। एग्जैक्टली हमने बिल्कुल सही काम किया है। ज़रा इस राउटर पर चले आते हैं। इस राउटर पे आईपी एड्रेसेस को देखना है हमें। इस राउटर पे हम लोग देख सकते हैं कि इस इंटरफेस पे हमने 2.2 दिया था, इस पे हमने दिया था 172.16.1.1 और इस पे 192.168.1.1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ज़रा प्रिविलेज मोड पर आकर के कमांड लगाएंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कमांड लगाते ही आपको समझ आएगा कि सर एफ ए 0/0 पे है 2.2, एफ ए 0/0 पे है 2.2। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है सर। और एफ ए 0/1 पे है 1.1, एफ ए 0/1 पे है बिल्कुल 1.1। और फिर हम चलते हैं हमारे एफ ए 1/0 पे है 1.2। तो देखिए हम हमारे एफ ए 1/0 पर है 1.2, बिल्कुल सही है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मेरा। यहाँ चले आइए, यहाँ पर भी आप एग्जिट आकर के प्रिविलेज मोड पे आइएगा। यहाँ हमें कमांड चलानी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कमांड चलाने के बाद आप ज़रा ध्यान से देखिएगा तो 0/0 पे तो 1.2 है और 0/1 पे 2.10 होना चाहिए। तो 0/0 पे 1.2 है और 0/1 पे 2.2 होना चाहिए। दैट्स राइट, वी हैव डन द कॉन्फ़िगरेशन राइट नाउ। लेट्स मूव ऑन द static routing operation. So now let me first decide, let me first see my routing table. Okay, let's see the routing table. Show IP route. So I have now, guys, any one of you got the idea that we have discussed in yesterday class. The video has been uploaded to the channel, so you can go and find out. Now every day I will upload the videos every day. Okay, so if you guys have any doubts, please go to the videos. It is not possible for all of you to find out the problems here. So you can go on videos and figure out the problems. If you guys have a problem, so please आप उसे बाद में पूछ सकते हैं. But for that you have to first go on that video. ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। हमने बात की थी पेरेंट एंड चाइल्ड के बारे में। तो देखिए आप लोग, मेरे पास ये जो पेरेंट रूट है वो क्या है, पेरेंट रूट है 172.16.0.0/24 और इसमें दो सबनेट दिखा रहा है। जो /24 है ये मेरे जो चाइल्ड रूट हैं उनका सबनेट मास्क है, क्योंकि चाइल्ड रूट FLSM है, सबके सेम टुकड़े हैं, /24 ही है, कोई अलग अलग नहीं है। दैट्स द ट्रू थिंग। तो यहाँ पर मेरे पास चाइल्ड रूट मुझे और पेरेंट रूट चाइल्ड रूट वाला कंसेप्ट दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली है यहाँ पर। बाकी कौन कौन से नेटवर्क नहीं है सर, 2 और 3 है। दिस राउटर कंटेन 3.0 and 2.0। व्हाट अबाउट 172.16 1.0, 192.168 1.0, 192.168.2.0? All these three networks are remote network for this particular router. I have to add them manually. So that's what I'm going to do. I'm going to run a command. Now you all guys should see the command and very clearly, guys, very clearly the practical configure terminal. Now IP root मेरी कमांड होगी। IP root के बाद मेरे पास मैं R1 पर हूँ, इस राउटर पर हूँ। मेरे पास नेटवर्क है सर 172.16.1.0। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क। Okay, the subnet mask will be /24 because 24 ही है उसका। Now I am sitting on this router, मैं इस राउटर पर बैठा हूँ, इस राउटर पर। तो मेरे लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है, ये राउटर। इस राउटर का या तो FA 0/0 या फिर इस राउटर पे जो आईपी एड्रेस मैंने दे रखा है FA 0/0 पे, वो देखिए। तो मैंने 172.16.2.2 दिया हुआ है, या फिर मैं FA 0/0 भी ले सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ एफ पास ईथरनेट 0/0, no problem, that will work, no doubt that will work। or else I can use the 172.16.2.2।
choice is yours. Okay, so if I make a wrong entry of any route, I'll simply remove that particular route by placing no before it. अभी मैंने जो नेटवर्क दिया था, मैंने जो राउटिंग की थी, उसमें हो सकता है कोई गलती होगी मुझसे, मुझे उस रूट को हटाना है, मुझे पता चला कि ये रूट तो मेरे पास खुद का अपना है, तो मेरे खुद के लोकल रूट के लिए मुझे राउटिंग करवानी नहीं है, वो तो बाई डिफॉल्ट मेरी राउटिंग टेबल में ऐड हो गया है। तो अगर मुझे कोई रूट गलती से मैंने दे दिया है या किसी राउटिंग करते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन मैंने चली गई है, तो उस पर्टिकुलर को आपको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए आप क्या लिखेंगे, जो कमांड आपने लगाई थी उस कमांड से ठीक पहले आपको नो लिखना है, दैट्स इट, वो कमांड वहां से रिमूव हो जाएगी। तो वापस से लिखेंगे हम लोग आईपी रूट 172.16.1.0 space 255.255.255.0 via 172. The next hop address is 16 and then 2.2. That's it. The first command that I have entered in the routing process, the static route command for a remote network. I have two more networks. So the next command will be IP route 192.168.1.0 space 255.255.255.0 via 172.16.2.2. Okay guys, मैंने next hop address same क्यों लिया है? Because it is very clear for me that if I want to go on 172.16.1.0, 192.168.1.0, or else 192.168.2.0, then I have to exit from this interface only. I have the only interface that can help me to exit from the particular router. So I will use the next hop address, the FA0/0 address. Okay. So the routing, I have done routing for two networks. So the next routing, the last command that I am going to add the next router 2.0, that 255.255.255.0 via 172.16.2.2. The next hop address is same for all these three नेटवर्क्स, बिकॉज इन तीनों नेटवर्क्स के लिए मेरे को बाहर निकलना होगा, तो वो इसी 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 पड़ोसी राउटर से निकल सकता हूँ, और वो भी इसी पर्टिकुलर एड्रेस से, क्योंकि मैं इसी को जानता हूँ। इस पे मेरा राउटिंग प्रोसेस हो गया है, लेकिन ध्यान रखिए पैकेट एलिजिबल है, पैकेट अब इस राउटर को पता है वेयर टू गो। अगर मैं यहाँ बैठ करके पिंग करता हूँ, मेरा पैकेट यहाँ से निकलेगा, इस राउटर पर आएगा, राउटर से पूछा कि भैया कहाँ जाना है, राउटर ने बताया, राउटर ने पता चला कि डेस्टिनेशन आईपी इज 172.16.1.1. Router will forward the packet to the next hop address. But does this router knows about 172.16? Yes, sir. This router knows about 172.16. So this router will also forward the packet to the destination. मेरा पैकेट यहाँ से निकला, मेरा हेलो पैकेट यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच तो जाएगा, लेकिन मुझे रिप्लाई चाहिए। तो क्या इस राउटर को पता है कि कोई नेटवर्क है मेरे पास 172.16.3.0 का? क्या इस राउटर के लिए ये नेटवर्क रिमोट नेटवर्क है या लोकल नेटवर्क है? सर दिख रहा है रिमोट नेटवर्क है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी तो यहाँ चाहिए। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस, जो नेक्स्ट राउटिंग प्रोसेस करेंगे, वो हम अपने अगले राउटर में करेंगे। और राउटिंग प्रोसेस क्या करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, हमें ऐड करना है मेरे इस नेटवर्क को। अच्छा, मुझे इस नेटवर्क तक पहुंचना है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे अगर इधर जाना है तो मेरा नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस होगा ये वाला राउटर का, इस इंटरफेस का एड्रेस मेरा नेक्स्ट स्टॉप होगा। और अगर मुझे यहाँ जाना है तो ये होगा। इसलिए हमारे बाहर निकलने का रास्ता, हमारा नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस सेम नहीं होगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग नेटवर्क के लिए जाने के लिए रास्ता अलग अलग होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे 192.168.2.0 पे जाना है और उसके लिए भी मैं एड्रेस इसी का दे दूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो पैकेट यहाँ आएगा, आने के बाद उसको जब यहाँ कुछ नहीं मिला रिगार्डिंग टू 192.168.2.0, तो व्हाट विल हैपन, पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर राउटिंग करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं लिखूंगा IP रूट 172.16.3.0 255.255.255.0 वाया, यहाँ से यहाँ देखूंगा तो 172
192.16.2.1। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है? मैंने ओके, आईपी रूट मैंने जो कमांड लगाई है गाइस, ये प्रिविलेज मोड में लगा दी, जबकि ये कमांड मुझे लगानी है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ हम लोग लगाएंगे इस कमांड को, क्योंकि वो कमांड मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगर कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लगेगी। आईपी रूट 172.16.3.0 वाया 172.16.2.1। मेरे लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस, इस राउटर के लिए पड़ोसी राउटर ये है। यहाँ जाने के लिए तो यहाँ जाना है, तो पड़ोसी राउटर है ये वाला राउटर। इस राउटर के और इस राउटर के बीच में जो कॉमन नेटवर्क है वो है ये, जिससे ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो इस राउटर के लिए पड़ोसी राउटर है ये, और इसका एड्रेस कौन सा है ये, तो यहाँ पर है 172.16.2.1, हमने वही दिया। लेकिन जो हमारा अगला राउटर है, अगला नेटवर्क है ये 2.0 वाला, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे आईपी रूट 192.168.2.0 स्पेस 255.255.255.0 वाया वाया यहाँ पर वाया में जाऊंगा इसके, ये वाला इंटरफेस, ये वाला, इस पे से जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 192.168.1.2, इसका 2 है, इसका 1.1 था। अभी मुझे ध्यान है, आप लोग इसे वेरीफाई करने के लिए वापस से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देख सकते हैं राउटर पे जा करके, तो वो आप करिएगा। ठीक है, मुझे ध्यान है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू उसको लिख रहा हूँ। वो वाया 192.168.1.2, दैट्स इट। यहाँ पर मेरे पास दो मुझे राउटर ऐड करने थे, दो नेटवर्क, क्योंकि मेरे पास तीन नेटवर्क पहले से थे। इस राउटर के डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है एक, इसके लिए दूसरा, और ये तीसरा नेटवर्क है जो इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस राउटर पे चल के जब मैं कमांड लगाऊंगा, कौन सी कमांड, शो आईपी रूट कमांड, तो आप लोग देखिएगा इस राउटर पर तीन सबनेट्स हैं 172। तो ये तो पेरेंट रूट हमारे पास है, ये इसके चाइल्ड रूट है हमारे पास दो, तो ये इसके पास खुद के पास है, और एक इसे स्टैटिकली मिल रहा है, ये हमने दिया था। और ये तीन रूट इसके पास लोकल हैं। सी सी फॉर कनेक्टेड, कितने रूट्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, कितने रूट्स हैं, तीन रूट्स हैं, 172.16.1.0, 2.0 एंड 192.168.1.0। बाकी के जो दो रूट्स हैं जो रिमोट नेटवर्क थे, उनको मैंने खुद ने मैन्युअली ऐड किया, और मैन्युअली ऐड करने की कमांड हम लोग देख चुके हैं। लास्ट राउटर बचता है मेरा, और इस लास्ट राउटर पे बैठ करके मुझे तीन नेटवर्क ऐड करने हैं। और वो तीन नेटवर्क कौन कौन से हैं, एक, दो, और ये तीसरा। एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, और ये तीसरा नेटवर्क, क्योंकि इस राउटर से सिर्फ ये वाला नेटवर्क जुड़ा हुआ है, और सिर्फ ये वाला नेटवर्क जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, इस राउटर पे दो नेटवर्क की तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी रूट, पहले देंगे 172। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला को सीन चलता हो, आपकी मर्जी है। आप पहले किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऐड करवा सकते हो। मुझे पता है कि मेरे इस राउटर के लिए बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, ये वाला, और इसका आईपी एड्रेस है 1.1। तो मैं दूंगा यहाँ पर 192.168.1.1, खत्म। अगला नेटवर्क है आईपी रूट 172.16.2.0 स्पेस 255.255.255.0 वाया 192.168.1.1। अगला एक और नेटवर्क है हमारे पास, वो नेटवर्क है 172.16.3.0 स्पेस 255.255.255.0 वाया 192.168.1.1। तो हमने हमारे राउटर में राउटिंग भी करवा दी है, और ये हमने हमारा काम कर दिया। इस राउटर में अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमारा जो काम है वो हम कर चुके हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, दैट्स ग्रेट।
अभी बात करा के देखते हैं। इस पीसी पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पर बैठ करके हम कमांड लगाएंगे पिंग 172.16.1.1। ज़रा देखते हैं कि क्या ये हमारी बात करवाएगा या नहीं। यस, वी गॉट दी पैकेट्स। मेरी बात हो रही है, मेरा नेटवर्क है 172.16.3.0 एंड स्टिल आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद दिस पर्टिकुलर 1.1 पीसी। मैं यहाँ बैठ कर के और इससे बात कर पा रहा हूँ, यहाँ बैठ कर के यहाँ, और मैं इस पीसी से बात कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्टैटिक राउटिंग। तो गाइज, इस सेशन में हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग कैसे होती है उसको समझा है। I want from all of you to install the packet tracer software and do the practice। कोई भी डाउट आता है तो कल के 15 मिनट हम उस डाउट सेशन को कवर करेंगे। एक प्रैक्टिकल हम लोग और करके देखेंगे। उसके अलावा जो भी डाउट्स हैं आप एक बार प्रैक्टिकल कीजिए, डाउट पूछिए। कल हम लोग स्टैटिक राउटिंग के साथ डिफ़ॉल्ट राउटिंग को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अगली सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर टुडे दैट्स ऑल। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को आप लोग प्लीज़ रेडी कीजिए और वी विल वर्क ऑन दैट। थैंक यू गाइस।